Hello students, welcome to another session of functions of management. In the previous classes, we have discussed about different functions of management in detail, that is planning, organizing and staffing. Today in this class, we are going to discuss yet another important function of management, that is directing. Clear? Okay? As in each class, I am saying that each function is very important, because as we know, in a building, as each of the pillars are important. Unless one pillar breaks down or not work effectively, then the total building collapse. Clear? As like that, in the functions of management, in the whole management, clear? All the functions are very important. We cannot say that this function is very important as compared to other. Clear? All are important in their own perspective, and all are effective, efficient only when used coordinately. Okay? All are interdependent. Each function depends upon other for its own effective continuity. Clear? That means rather we plan, we cannot follow the other functions. If we cannot organize, then other functions are also useless. If we don't have proper staff, that is staffing, then also it will create a lot of problem in the organization, and other functions may not be taken appropriately, efficiently. Okay? So today we are going to discuss the importance, clear, what is directing, the importance of directing and the feature of directing. As that is the means for all the functions we have a common conceptual way, that is we define the meaning, the characteristics and the importance or functions of that managerial function. Okay? So let us start with a simple example, clear, to make you understand what is directing actually mean. See students, this is 21st century. Okay? ये जो है आज का जो दुनिया है, इसको हम बोलते हैं 21st century. 21st century means everything is advanced. ठीक है कि नहीं? पहले हम लोगों को मोबाइल फोन मिला था, बोल सकते हैं मिला था कभी, जब हम +3 के टाइम पे थे, है कि नहीं? जब हम ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए आए, हमारे घर में हमारे लिए एक मोबाइल फोन लेके दिए थे कि चलो बच्चों को अभी जरूरत है. वो भी कौन सा था? कीपैड फोन था. क्लियर? तो तभी इतना डेवलपमेंट नहीं था, चल रहा था थोड़ा डेवलपमेंट, है कि नहीं? वो टाइम पे एंटरटेनमेंट का जो द सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट वाज आल्सो लिमिटेड. वी यूज्ड टू go to playground for entertaining us, जो कि है आजकल के बच्चों का जो टाइम पास का एक जरिया है, वो हो गया क्या? मोबाइल फोन. आजकल तो बच्चे क्या होते हैं, मतलब बड़ों का तो छोड़ दो, छोटे बच्चों को मोबाइल फोन का ज्यादा जरूरत होता है कि नहीं? क्योंकि उन लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए. एंड इन टुडेज वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का मतलब अगर आप किसी को पूछो, कोई बच्चे को, कि एंटरटेनमेंट का मीनिंग क्या है, तो वो बोलेगा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन. स्मार्टफोन इज द ओनली मीन फॉर देयर एंटरटेनमेंट, है कि नहीं? तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको इसी 21st सेंचुरी का एग्जांपल देके आपको समझा पाऊं कि व्हाट इज डायरेक्टिंग मीन. क्लियर? सो क्या होता है, देखो आज के टाइम पे हम सब स्मार्टफोन देखते हैं, मतलब है सबके पास स्मार्टफोन है, और वी ऑल
spending lot of our time in watching the movies, okay, short story, cartoon, yes or no? So हम ये बोल सकते हैं कि एंटरटेनमेंट का एक ओनली सोर्स है अपने लिए, दैट इज मूवी, सीरियल, टीवी सीरियल्स, ओके, वेब सीरीज, कार्टून्स, लाइकवाइज, क्लियर? तो और वो सब हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, है कि नहीं? बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब इतने अच्छे लगते हैं कि वो मोबाइल, एक स्मार्टफोन लेके हमें कोई खाना भी ना दे तो चलेगा, हम दिन भर अपना गुजारा कर सकते हैं विथ ए सिंपल स्मार्टफोन, विथ लॉट ऑफ मूवीज, वेब सीरीज एंड अदर टीवी सीरियल्स, क्लियर? सो ये सब इतना अच्छा हमें क्यों लगता है? बिकॉज ऑल आर बिलोंगिंग टू आवर ओन फीलिंग्स, क्लियर? ओन फीलिंग्स, reality, clear, which is happening in the environment, which is happening in the world, in our local area, है कि नहीं? वो लोग जो टीवी में जो दिखाते हैं, जो मूवी में जो आता है, all are based on our real own reality, है कि नहीं? रियल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, बायोपिक होते हैं, जैसे कि हमें इंटरेस्टिंग लगता है, हम देखते रहते हैं। तो ये सब बनाता कौन है? जैसे कि हम जानते हैं, हर एक चीज में आप कोई कुछ मालूम हो या ना हो, ये जो एक वर्ड है ना, ये सबको मालूम होता है कि जब एक मूवी बनता है, जब एक शॉर्ट फिल्म, मूवी, कुछ भी बनता है, तो उसको इंटरेस्टिंग, क्लियर, बनाता कौन है? मतलब कौन ऐसा एक चीज देता है जिससे कि इट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग मेक द मूवी मोर इंटरेस्टिंग, रियल, सो दैट वी कैन डिपेंड अपॉन दैट एंड वी टोटली गेट इन टू दैट पर्टिकुलर मूवी और दैट पर्टिकुलर कंटेंट। तो वो कौन है? वो पर्सन जो कि मूवी को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। सबके दिमाग में भी आंसर आ गया होगा, कौन है वो? That person is called the director. Yes or no? Director. ये सबको मालूम है, कुछ मालूम हो या ना हो, ये तो सबको डेफिनेटली मालूम है कि डायरेक्टर इज द पर्सन हु डायरेक्ट द मूवी, हु डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब, देखो, जो मूवी में जो आर्टिस्ट लोग काम करते हैं, उन लोग को क्या मतलब, डायरेक्टर क्या उन लोग को ट्रेनिंग देता है क्या? सिखाता है क्या? नहीं, कुछ नहीं करता है, सिखाता है नहीं, क्योंकि उन लोग को ट्रेनिंग पहले से मालूम है, एक्टिंग कैसे करना है मालूम है। बस सिंपली डायरेक्टर क्या करता है? सिंपली कि उसके दिमाग में कि मुझे एक ऐसा मूवी बनाना है जो कि ऑडियंस को अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, इसके लिए वो क्या करता है कि ऐसा करवाता है, आर्टिस्ट लोगों को बोलता है कि आप लोग ऐसा करो। दैट मीन्स द डायरेक्टर यूज्ड टू गाइड द आर्टिस्ट, ओके, द ऑर्डर द आर्टिस्ट, वो ऑर्डर देता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, ऐसे करो, है कि नहीं? वो गाइड भी देता है कि वो पहले करके बताता है कि ऐसा करना है कि नहीं? जैसे कि हम देखते हैं कोरियोग्राफर, क्लियर, हम बोलते हैं जिसको कोरियोग्राफर मतलब जो कि डांस का टीचर होता है, जो कि डांस सिखाता है। जो हम डांस देखते हैं ना, एक 4 मिनट 5 मिनट का जो मस्त वीडियो एक देखते हैं, अच्छा लगता है देखने से, द डांस स्टेप्स सब, बट वो बनाने के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाता है। कैसे? क्यों? वो जो कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर इज आल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डांस मूव्स, दैट इज उसका अलग नाम है, उसको हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर क्या करता है? जो डांस करते हैं उन लोग को क्या डांस नहीं आता है? आता है डांस, बट ये सॉन्ग में कैसा डांस करना है वो क्या करता है? कोरियोग्राफर सिखाता है कि ऐसा करो, ये स्टेप करो, ऐसे करो, वो करके भी बताता है कि नहीं? फिर देखता है हो रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं? वो जैसा चाह रहा है वैसा अगर हो रहा है तो वो बोल रहा है चलो फाइनल टेक ओवर, अगर नहीं हुआ तो रीटेक चलता रहता है।
है कि नहीं? दैट मीन्स दिस इज सुपरविजन। वो सुपरवाइज करता है, देखता है कि मुझे जैसा चाहिए वैसा हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो सही है, फाइनल कर देते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो वो बोलेगा रीटेक, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, है कि नहीं? फिर अगर कोई सीन पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कर नहीं पाता है, थोड़ा डिप्रेस फील करता है, तो डायरेक्टर क्या करता है? उसको मोटिवेट करता है कि नहीं, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आपसे हो जाएगा, ये बहुत ही छोटा सिंपल है, ये देखो ऐसा करो, ये करो। वो बोल के उसको मोटिवेट करता है कि ये ऐसा आप करो, ये आप कर सकते हो, है कि नहीं? जैसे कि हम देखते हैं आर्टिस्ट लोग को जब कोई अवार्ड मिलता है तो वो डेफिनेटली अपने डायरेक्टर को क्या करते हैं? प्रेज करते हैं कि ये मेरा जो अचीवमेंट हो पाया दैट बिकॉज ऑफ माय डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे ऐसा डायरेक्शन दिया, ऐसे करवाया, ऐसे मैंने ऐसा किया और मुझे ये रिजल्ट मिला। क्लियर? आ गया समझ में? क्लियर? सो डायरेक्टर मीन्स द पर्सन हु डायरेक्ट द एंटायर मूवी। जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट जो है, जो दिया था वो छोड़ दो, उसको रियलिटी में कौन कन्वर्ट करवाता है? डायरेक्टर, ताकि हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है। जब एक मूवी बनता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट मस्ट बी फेमस, मिलियन बिलियन लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, है कि नहीं? क्लियर? व्यूज मिले और लोग उसको ज्यादा पसंद करें, बॉक्स ऑफिस में ज्यादा इनकम हो, है कि नहीं? वो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है बिकॉज ऑफ ए गुड डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर अच्छा ना हो तो कोई भी बड़ा फिल्म ले लो, अगर डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फेक लगता है एक्टिंग, और वो क्या होता है? फिल्म फ्लॉप हो जाता है। क्लियर? तो इससे क्या पता चला? जो पर्सन डायरेक्शन देता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। एंड द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द आर्टिस्ट, द एम्प्लॉइज जो आपके अंडर काम करते हैं, क्यों काम करते हैं? वो अपना अपना सेल्फ ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। आप उन लोगों से काम करवाते हो, क्यों करवाते हो? ताकि आपका अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। आ गया समझ में? डायरेक्टिंग का मतलब आ गया समझ में? तो वही चीज को अभी हम इंटरप्रेट करेंगे इन आवर थ्योरेटिकल एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है। वैसा ही है जो जैसा कि हमने देखा, डायरेक्टर कौन है? इधर डायरेक्टर द टॉप लेवल पर्सन्स, टॉप लेवल पर्सनल्स, है कि नहीं? द मैनेजर्स, द सुपरवाइजर्स, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर। देखो ये सब जो है ना, दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स दैट डिपेंड दैट ऑफ टॉप लेवल। क्लियर? दे आर ऑफ मिडिल लेवल एंड ये जो दो हैं लोअर लेवल के, है कि नहीं? मतलब आप देख सकते हो कि हमारे जो मैनेजमेंट टीम में हर कोई अपने अपने हिसाब से एक एक डायरेक्टर होता है। अपना काम कैसे करना है, कैसे उन लोगों को चाहिए, वो अपने हिसाब से डायरेक्शन देते हैं। तो ये हम जैसे कि मैंने बोला था कि दैट इज द कॉमन फीचर, है कि नहीं? जो कि ऑलमोस्ट हर कोई फंक्शन में रहता है कि एज लाइक प्लानिंग। क्लियर? डायरेक्टिंग फंक्शन इज आल्सो ए परवसिव फंक्शन। परवसिव मतलब ईच एंड एवरी लेवल में, ग्राउंड में, काम में जो उसके जो हायर अथॉरिटी होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपने लोगों को क्या करवाना है, कैसे करवाना है, उसके रिलेटेड वो लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे करो, ये करो, ताकि हमारा काम अच्छा हो सके और हमें अपना ऑब्जेक्टिव मिल पाए, सक्सेसफुल हो पाए, वी कैन अचीव दोज एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। क्लियर? ओके, सो सिंपली वी कैन से, अभी आ गया आप लोगों को समझ में कि डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है। क्लियर? अभी अगर हम इसको देखेंगे फ्रॉम आवर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सो वी कैन से डायरेक्टिंग
is the process. Directing is the process. ये एक प्रोसेस है. प्रोसेस ऑफ व्हाट? किसका प्रोसेस है? प्रोसेस मतलब चलता रहता है. किसका? कि इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, कमांडिंग, ordering, commanding, guiding. Commanding, ordering, guiding, supervising, clear? Leading, मोटिवेटिंग, ठीक है. ऑर्डरिंग, ऑर्डर देना. डायरेक्टर का काम क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डर. जैसे कि देखो हमारे पास जो पर्सनल्स हैं, जो कि हमने स्टाफिंग फंक्शन में डिस्कस किया कि 1000, 2000, 5000, 10 लाख में से हम क्या करते हैं? अच्छे अच्छे कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू आवर वैकेंसी हमारे मैनेजमेंट टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए हम सबसे बेस्ट एम्प्लॉइज को चूज करते हैं, अपॉइंट करते हैं. मतलब सबको, हर कोई काम आता है, हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, है कि नहीं? होने के बाद जैसे मैंने बोला कि आर्टिस्ट लोग को सब आता है काम, बस हमें उसको बोलना है कि ये करो. वैसे हमारे पास जो एम्प्लॉय है उन लोग को भी सब काम आता है, बट कौन सा काम को कैसे करना है, सिचुएशन बेस्ड. बिकॉज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. कभी क्या हो जाए मार्केट में चेंज, वी डोंट नो. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक डायनामिक डिसीजन. ये काम किसका है? डायरेक्टर का काम है कि डायनामिकली अपने जो एम्प्लॉयज को काम करवाना मतलब ऑर्डर देना कि करो, ये करो, है कि नहीं? ये काम को अभी आपको करना है. मीन्स जो हमने प्लान किया था एग्जीक्यूट करने के लिए, अभी इसको आप एग्जीक्यूट करो, ठीक है कि नहीं? काम शुरू करो. ऑर्डर देगा पहले, सबसे पहले कि स्टार्ट योर इंडिविजुअल वर्क्स, दोज आर असाइन्ड टू यू, फॉर विच यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल, फॉर विच यू हैव ऑथोरिटी. जिस चीज के लिए आपके पास ऑथोरिटी है, फॉर द थिंग्स फॉर विच यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल, स्टार्ट योर ओन एक्टिविटी. ऑर्डर देता है, कमांड देता है कि करो, है कि नहीं? फिर और क्या होता है कि कोई शुरू करता है, कोई नहीं कर पाता है. जो नहीं कर पाता है उसको ये क्या करता है? गाइड करता है कि ये करो, ऐसे करो. जो कि फ्रेशर्स है कि नहीं? फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस भी हो, अपने कंपनी में नए हैं, नया काम सीख रहे हैं अपने कंपनी के हिसाब से, इसलिए वी हैव टू गाइड देम. जैसे बोला वो करके भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना है. कोरियोग्राफर डांस करके बताता है, डायरेक्टर, मूवी का डायरेक्टर वो करके बताता है कि ये सीन ऐसा करना है कि नहीं? तो दैट इज गाइडिंग. गाइड करता है कि ऐसा ऐसा करो. फिर सुपरवाइज, देखता है. जो काम जब होता है वो देखता रहता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, जैसा मुझे चाहिए वैसा हो रहा है कि नहीं. वो देखेगा, हाँ हो रहा है सही से, तो चलो ठीक है करते हैं, है कि नहीं? फाइनली उसको एक्सेप्ट करते हैं. दिस विल लीड्स टू फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव. क्लियर? लीडिंग, और वो पूरे के पूरे जो मूवी को, पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होने तक, टिल वी अचीव द ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं? जो मैंने लिया था वीवो ओप्पो का स्मार्टफोन का जो एग्जांपल, कि वीवो ओप्पो फोन को मार्केट में डिमांडियस बनाना, सेल करवाना, उसके लिए वो क्या कि पूरा का पूरा जब तक हम वो एंडिंग तक ना पहुंचे, पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव हमें ना मिले, तब तक वो टीम को लीड करता रहेगा. डायरेक्टर, द लीडर ऑफ द होल ऑब्जेक्टिव और द मूवी और द सिनेरियो, है कि नहीं? क्लियर? और उसके साथ और क्या करता है? मोटिवेट करता है कि नहीं? मोटिवेटिंग. जो अपने जो स्टाफ है वो कब कब क्या होते हैं, कभी कभी दे फील हरास्ड. उन लोग का जो है मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि मोरल डाउन होने का बहुत सारा रीजन होता है. मे बी दे आर फिजिकली टायर्ड,
maybe they are mentally tired, maybe the situation clear is not suitable for them to perform better. तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट है रीजंस, उसके वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय समटाइम दे लूज देयर मोरल. एट दैट टाइम द डायरेक्टर क्लियर, द लीडर यूज्ड टू मोटिवेट देम so that they can feel, they can boosted up their moral and they can again start their working efficiently. Clear? तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, कमांडिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, क्लियर, एंड कम्युनिकेटिंग द personnels or employees. Clear? Employees working in the organization. Clear? जो employees काम कर रहे हैं organization for successful, efficient, effective, clear, fulfillment of the organizational objective, clear. So directing means, we can say directing is the process of ordering, commanding, guiding, supervising, leading, motivating and communicating. Communication is also important. कि सोचो कि जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्शन दे रहा है, जो लीडर है, जो अपना बॉस है, उसको सोचो कि उसको ओनली इंग्लिश ही आता है, उसको हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है, ठीक है. और जो बाकी जो एम्प्लॉइज हैं उन लोग को इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता है, तो क्या होगा, जो आया बॉस वो पूरा समझा दिया इंग्लिश में, ये वो करना है कि नहीं, इन द फ्लुएंट पैटर्न. क्योंकि वो लोग जो एम्प्लॉइज लोग होते हैं उन लोग का भी इंग्लिश क्या होता है, थोड़ा इतना फ्लुएंट नहीं होता है. तो वो जो बॉस है वो ट्रेन्ड है, वो एक्सपीरियंस है, वो अपने हिसाब से समझा दिया. और जो बाकी जो एम्प्लॉइज है वो लोग सुन के उन लोग को लगा कि हाँ समझ में आ गया, बट वो लोग नहीं समझे होंगे. तो प्रॉब्लम क्या होगा कि डायरेक्टर को चाहिए एक चीज और जो स्टाफ कर रहे हैं एक चीज, बार बार वो सुपरवाइज कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. तो वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्टर को चाहिए क्या, वो क्या हमसे चाहता है, व्हाट द डायरेक्टर वांट्स, वो हमसे करवाना क्या चाहता है, उन लोग को समझ में नहीं आया, तो वो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं. आप उन पे कितना भी एफर्ट दे दो वो नहीं कर पाएंगे. उनको बस एक ही चीज चाहिए, क्या, गुड कम्युनिकेशन. गुड कम्युनिकेशन मीन्स यू हैव टू मेक देम क्लियर व्यू, आइडिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज इन योर माइंड. आपके दिमाग में है क्या, उनको अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से उनको समझाना है, वेदर इट इज ओरल, रिटन और नॉन वर्बल, है कि नहीं. आप उसको उस चीज को इधर लिख के बोलो कि कोई एक एम्प्लॉय उसको वो सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकता, उसको लिख के देना है कि नहीं, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलना है, क्लियर. और नॉन वर्बली जो कि जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स, उससे हमें यूज करके उनको समझाना है कि ये आपको करना है, ऐसा करना है, ये हमें चाहिए, है कि नहीं. सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. Unless you communicate your subordinates, your staff belongs to you properly, they cannot follow you properly. तो क्या होगा, आप जाओ, आपके माइंड में एक चीज होगा और वो लोग काम करेंगे एक चीज, and that will differ your way towards your objective. नहीं मिलेगा आपको objective. So that's why direct communicating is also important in directing. Clear? So communicating किनको ये सब चीज करना है, किसको, पर्सनल्स को जो हमारे पास काम कर रहे हैं, और द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, काम कर रहे हैं,
कि हम जो ये सब चीजें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? फॉर सक्सेसफुल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये सब चीज करना है। सो डायरेक्टिंग इज द मिक्सिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये सब चीज हमें करना पड़ता है। क्लियर? ओके, देन वी कैन से डायरेक्टिंग क्लियर, डायरेक्टिंग जो है क्लियर इज concerned with human beings and their efforts. Directing is concerned with human beings and their efforts. डायरेक्शन जो है वो मोस्टली किसके साथ कंसर्न है? ह्यूमन बींग्स, जो कि पर्सनल हमारे पास जो काम कर रहे हैं उनके साथ है और उनके एक्शन के साथ है, एफर्ट्स वो लोग जो दे रहे हैं। हर कोई काम करता है कि सोचो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है सबसे जो बेस्ट, कि चलो ले लो कि अगर हम एग्जांपल लेंगे कि चलो एक बेस्ट हमारे जो कंपनी के जो बेस्ट स्टाफ हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे, है कि नहीं? 10-10 दिन का जो 2 ट्रायल लेंगे, ठीक है? एक ट्रायल 10 दिन का, दूसरा ट्रायल 10 दिन का। क्या होगा? 10 दिन के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट 10 डे क्लियर वी मेक द ग्रुप। वो ग्रुप में कोई भी डायरेक्टर नहीं होगा, कोई भी लीडर नहीं होगा, बॉस जो कि वो टीम को लीड करेगा कोई नहीं होगा। उसको उन लोगों को हम एक काम देंगे तो हम देखेंगे ऑब्वियसली द रिजल्ट कि वो 10 दिन में वो लोग जितना अचीव कर पाते हैं, दैट इज वन थिंग। एंड इन द सेकेंड 10 डेज हम क्या करेंगे? उन लोगों के लिए एक डायरेक्टर को ऐड करेंगे, एक बॉस, एक टीम लीडर को हम डिसाइड करेंगे, फिर उनको वो काम देंगे। हम देखेंगे डेफिनेटली, इट इज डेफिनेटली श्योर कि जो दूसरा पार्ट है वो डेफिनेटली सबसे बढ़िया होगा। क्यों? व्हाई? बिकॉज सी अनलेस समबडी डायरेक्ट अस, गाइड अस, मोटिवेट अस, सुपरवाइज अस, we cannot perform our own responsibility properly, because it is a human tendency. ये साइकोलॉजी है। जब तक आपको ना बोला जाए ये करो, ऐसे करो, तब तक unless otherwise you are a brilliant student, you are a brilliant employee with maximum potential, you may prove to be low. Clear? below your skill, आपके स्किल के नीचे ही आप लोग काम करोगे, बिकॉज द रीजन इज यू हैव नो डायरेक्शन, है कि नहीं? तो इसलिए हम अगर डायरेक्शन करेंगे तभी एक, अगर डायरेक्शन, इफ वी डायरेक्ट प्रॉपरली, एक अनस्किल्ड एम्प्लॉय भी स्किल्ड जैसा काम कर सकता है। बट अगर हम डायरेक्शन ना करेंगे तो एक स्किल्ड एम्प्लॉय भी अनस्किल्ड जैसा ही काम करेगा। आ रहा है समझ में? विथ डायरेक्शन एन अनस्किल्ड एम्प्लॉय कैन वर्क लाइक ए स्किल्ड एम्प्लॉय। क्लियर? विदाउट डायरेक्शन ए स्किल्ड एम्प्लॉय में वर्क एज एन अनस्किल्ड एम्प्लॉय, है कि नहीं? मतलब वो ये है डायरेक्शन का पावर। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज इट इज कंसर्न विद ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एफर्ट्स। वो एफर्ट्स को मैनेज करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना ही डायरेक्टिंग का काम है। ठीक है? जो स्टाफिंग फंक्शन में हमने किया कि इतने बड़े बड़े एम्प्लॉयज को लाके रख दिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक बेस्ट लीडर्स को चूज करेंगे जो कि हर एक टीम को, हर एक ग्रुप को लीड करेगा, है कि नहीं? एंड वो लीड करने से ही हर कोई अपना अपना काम अच्छे से करेगा, एंड देन ओनली the thing, the objective we can achieve, otherwise we cannot achieve our objective. Clear? आ गया समझ में what is directing? then हम next देखेंगे स्टूडेंट्स कि जैसे कि है एक दो डेफिनेशन हम देखते हैं।
definition we can say how we define, clear, or how that word directing is defined by various management philosophers, clear. So we can say, अगर हम लेंगे एक जो फेमस फिलोसोफर हैं, मैनेजमेंट फादर हैं, उनको अगर हम लेंगे, दैट इज कुंजन ओडोनेल. According to Kunj and O'Donnell, according to Kunj and O'Donnell, directing is the interpersonal aspect of managing. Directing is an interpersonal. Directing is an interpersonal. Interpersonal क्यों हुआ? Because person to person. जो डायरेक्टर होता है वो एक पर्सन होता है. किसको डायरेक्शन देता है? एक पर्सन को ही देता है. किसको कम्युनिकेट करता है? किसको गाइड करता है? किसको सुपरवाइज करता है? एक पर्सन को ही करता है. सो वी कैन से इट इज इंटरपर्सनल. इंटर, पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ मिलाना. एक जिसको सब कुछ आता है, उसको पता है क्या करना है, एक जिसको नहीं पता है, इन दोनों को मिलाना, ताकि जिसको पता है वो जिसको नहीं पता है वो उससे करवा पाए. क्लियर? सो डायरेक्टिंग इज एन इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग. चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, हैंडल करना, है कि नहीं, कि अच्छे से काम हो पाए. मैनेजिंग बाय विच, क्लियर, इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग, मैनेज करना है. उससे क्या होगा? बाय विच सबऑर्डिनेट्स आर लीड टू अंडरस्टैंड, बाय विच सबऑर्डिनेट्स आर लीड टू अंडरस्टैंड, lead to understand and contribute effectively, and contribute effectively and efficiently to the attainment of the objective, to the attainment of the enterprise objective. आ रहा है समझ में कि कुंजन ओडोनेल ने ये चीज को डिफाइन किया. बहुत अच्छा डेफिनेशन है. जो मैंने बोला मीनिंग में वही है डेफिनेशन में, कि इट इज द डायरेक्टिंग, क्लियर, डायरेक्टिंग इज एन इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग. इंटरपर्सनल, पर्सन टू पर्सन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग. मैनेजिंग मतलब वी कैन से गाइडिंग, मोटिवेटिंग, क्लियर, प्रमोटिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेटिंग द पर्सन्स वर्किंग अंडर अस, दैट इज द सबऑर्डिनेट. क्लियर? जिससे क्या होगा? बाय विच सबऑर्डिनेट्स आर लीड टू अंडरस्टैंड. जिससे क्या होगा? सबऑर्डिनेट्स, जैसे मैंने बोला था, जो हमारे अंडर काम करते हैं. ऑब्वियसली डायरेक्टिंग इज ए टॉप लेवल फंक्शन. टॉप मतलब जो ना आपके ऊपर जो है वही आपको डायरेक्ट कर सकता है. आप नीचे ऊपर वाले को डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप फीडबैक दोगे. दैट इज कॉल्ड फीडबैक, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. डायरेक्शन, फीडबैक. क्लियर? सो डायरेक्शन इज ऑलवेज, क्लियर, डाउनवर्ड, टॉप टू डाउन ही आता है. ऊपर वाला आपको नीचे डायरेक्शन देगा. क्लियर? एंड फीडबैक ऑलवेज डाउन टू टॉप, मींस अपवर्ड. अपवर्ड मींस नीचे से ऊपर जाएगा. डाउनवर्ड मींस नीचे से ऊपर आएगा, सॉरी ऊपर से नीचे आएगा. क्लियर? अपवर्ड मींस नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड मींस ऊपर से नीचे. जो कि है डायरेक्शन, वो है डाउनवर्ड. उसका डायरेक्शन क्या है? मतलब वे डाउनवर्ड. बिकॉज टॉप लेवल
पर्सनल से आपको ऑर्डर देंगे कि ये करो ऐसा करो, और जो कि फीडबैक है कि कैसा लगा क्या लगा, द ग्राउंड पोजीशन, द ग्राउंड सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक, कि डायरेक्टर ने जो जो बोला उसको फीडबैक कौन देता है? द ऑडियंस, द कस्टमर। अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत अच्छा लगा, इनकम अच्छा हुआ, दैट इज द फीडबैक। वो किधर से आता है? नीचे से आता है, उसमें डायरेक्टर का कोई हाथ नहीं है। क्लियर? एंड द फीडबैक इज डिपेंड अपॉन द एक्शन ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर अगर अच्छा काम करेगा तो फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, है कि नहीं? क्लियर? सो द सबऑर्डिनेट दे वर्क अंडर अस टू लीड अंडरस्टैंड। उससे क्या होगा? वो लोग समझेंगे कि क्या समझेंगे? अंडरस्टैंड मतलब वी मस्ट कम्युनिकेट देम प्रॉपर्ली, ताकि उन लोग को समझ में आए कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्टर हमें क्या करवाना चाहता है, अभी प्रेजेंटली व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द बिजनेस डिमांड, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू एक्ट अपॉन। डायरेक्टर बोल रहा है ये करो, हमें यही करना है, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे वो काम करने के लिए जो काम ने हमें डायरेक्टर ने बोला कि ये करो, उसी में हम अपना दिमाग लगाएंगे, बाकी कोई काम में दिमाग नहीं लगाना है। उसको इन चीजों को वो समझ में आ गया कि यस हमें ये करना है, ताकि वो क्या करेंगे, एंड अगर समझ में आएगा तभी क्या होगा? द स्किल्ड एम्प्लॉई, इफ डायरेक्शन है, इफ डायरेक्शन इज प्रेजेंट, देन ए स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड एम्प्लॉई, वो उसका वर्क भी एफर्ट भी पूरा प्रॉपर रहेगा, है कि नहीं? स्किल्ड एम्प्लॉय का वर्क प्रॉपर रहेगा, और अनस्किल्ड भी हो, अनस्किल्ड एम्प्लॉय ऑल्सो उसका काम भी प्रॉपर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बट अगर डायरेक्शन ना हो तो क्या होगा? डायरेक्शन अगर ना हो तो जो स्किल्ड वर्कर है उसका काम भी गलत, और अनस्किल्ड जो है उसका काम भी हो जाएगा गलत। सोचो कि अनस्किल्ड तो काम करना आता नहीं है तो डेफिनेटली वो तो नहीं करेगा, और डायरेक्शन नहीं है इसलिए जो स्किल्ड है वो भी क्या हो गया? ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, हो जाएगा, नहीं हुआ, फेल। बट अगर डायरेक्शन होता तो स्किल्ड तो अपना काम अच्छे से करता अनस्किल्ड वर्कर भी अच्छा काम कर देते हैं। क्लियर? ठीक है? तो ये सब जो हमने किया डायरेक्शन, क्यों? ताकि वो लोग कंट्रीब्यूट कर पाए अपना एफर्ट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली टू द अटेनमेंट। अटेन मतलब टू अचीव, अटेनमेंट मीन्स टू अचीव, जो पाना, क्या? अपना ऑब्जेक्टिव। एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शन, जो इंटरपर्सनल एस्पेक्ट को मैनेज करते हैं। क्लियर? ताकि सबऑर्डिनेट अच्छे से समझ पाए कि उनको क्या करना है, और जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए अच्छे से, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली टू अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके? क्लियर? बस यही एक डेफिनेशन, आप ये एक डेफिनेशन को अच्छे से याद रखो, एक डेफिनेशन लिख दो वो एनफ है, 4-5 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो आप लोग 4-5 डेफिनेशन एक आंसर में नहीं लिख पाओगे, दैट इज टोटली, वी कैन नॉट से इम्पॉसिबल, पॉसिबल, बट आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारना इज नॉट ए गुड हैबिट, आप समझ के जाओ। तो एक डेफिनेशन अच्छे से समझ जाओ, उसको फिर लिखो, कोई बात नहीं, बिकॉज एज सी, ये मैंने पहले क्लासेस में बोल चुका हूं, बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि डेफिनेशन एक ऐसा चीज है कि जो कि है डायरेक्ट है। डायरेक्ट डेफिनेशन मतलब कुंज नोडल ने क्या बोला उसी को हमें लिखना है, कोई भी एक वर्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पंक्चुअलिटी को हम, पंक्चुएशन को चेंज नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड को इनडायरेक्टली हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, जैसे बोले हैं वैसा ही लिखना है, दैट इज डेफिनेशन। मीनिंग मतलब अपने हिसाब से क्या है उसका मतलब, अकॉर्डिंग टू यू, उसको हम कैसे भी लिख सकते हो, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ओन थिंकिंग, ओन थॉट्स, बट डेफिनेशन यू कैन नॉट चेंज। क्लियर? तो एग्जाम में हम हमेशा बोलते हैं कि अपने दिमाग से लिखो, समझो चीजों को, समझो फिर अपने हिसाब से लिखो, रट्टा मार के मत लिखो। तो डेफिनेशन आपको रट्टा मारना पड़ेगा, 2-3 रट्टा मार के गए होगे एग्जाम हॉल में, भूल जाओगे।
और इधर उधर हो गया तो वो हो गया गलत, है कि नहीं? क्योंकि मैंने बोला है कि अगर होमवर्क ना करोगे तो थप्पड़ मारूंगा, पनिशमेंट दूंगा। दैट इज माई ओपिनियन, मेरा वो है डायरेक्ट, दैट इज माई डेफिनेशन कि क्लियर, आई सेड दैट आई विल पनिश यू इफ यू विल नॉट कंप्लीट द होमवर्क। क्लियर? उसको बाहर जाके लोग बच्चे क्या क्या बोलेंगे, है कि नहीं? कि सर ने बोला थप्पड़ मारेंगे, आप करो कि ना करो सर थप्पड़ मारेंगे, है कि नहीं? आप ना लिख के आओ फिर भी सर थप्पड़ मारेंगे, आप लिख के आओ तो भी सर थप्पड़ मारेंगे, सर पूरे गुस्से में है, पूरे थड़े थप्पड़ मारेंगे ही मारेंगे, है कि नहीं? कोई कैसा बोल सकता है? तो वो गलत हो गया, हो कि नहीं? सो दैट्स व्हाई डेफिनेशन एप्रोप्रिएट, रट्टा मार के जाना पड़ेगा। सो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, अगर डेफिनेशन ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, अगर लिख रहे हो तो एक डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाओ, उसको आप लिखो, ठीक है? क्लियर? सो ये है डेफिनेशन जो कि इजी वाला है, इसलिए मैंने डिफाइन किया, समझा दिया, ताकि ये आपके दिमाग में रह सके और आपको इसको आप डिफाइन कर पाओ। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे कि हमने देखा कि अदर फंक्शंस में मीनिंग होने के बाद, मीनिंग डेफिनेशन होने के बाद डायरेक्ट हम जाते थे उसके क्या फीचर्स में, बट डायरेक्टिंग में क्या है, डायरेक्टिंग में हम थोड़ा अलग करेंगे, बिकॉज डायरेक्शन जो मैंने बोला, इन द डायरेक्शन वी हैव सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, वी हैव सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि मैंने बोला क्लियर मीनिंग में कि डायरेक्टिंग इज कमांडिंग, ऑर्डरिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, लीडिंग। तो स्टूडेंट सी वो जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमने देखा द थिंग्स, सो इट इज क्लियरली डिफाइंड कि डायरेक्टिंग का मतलब उसके अंदर एक मेन 4 एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब जिससे कि वो बनता है, जिससे उसका मीनिंग कन्फाइंड होता है, डिस्क्राइब होता है, पता चलता है, जिससे कि वो काम करता है। मतलब डायरेक्टिंग ऐसा कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके अलावा डायरेक्टिंग इज नॉट डायरेक्टिंग। वी कैन नॉट डिफाइन डायरेक्टिंग, वी कैन नॉट से डायरेक्टिंग क्लियर इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो क्या है वो चीजें जिसको हम बोलते हैं द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, क्लियर? तो वी हैव 4 important element of directing का we have mainly 4 important element। सब तो हैं उसके एलिमेंट जो मैंने बोला कि कमांड करना, ऑर्डर देना, गाइड करना, लीड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, सब होता है। बट जो अलग मतलब जो दूसरे चीज है उसको हम कॉमन फैक्टर में लेते हैं, और स्पेशली वी हैव 4 थिंग, मीन्स वी टेक 4 थिंग्स, 4 एलिमेंट्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डायरेक्टिंग। क्या है वो 4? वो है नंबर, ऐसा तो कोई नहीं कि 1 2 3 4 सीरियली है, आप किसके बाद भी किसको लिख सकते हैं, क्लियर? तो जिससे हम बोलेंगे कि कम्युनिकेटिंग, क्लियर? कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, क्लियर? कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, देन सुपरवाइजिंग, बस सुपरविजन बोल सकते हैं, देन होता है लीडिंग। ठीक है? ये जो 4 एलिमेंट हैं डायरेक्टिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर? जिसको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, फिर भी हम इसको क्लियरली अभी और समझेंगे कि ये क्या होता है, क्लियर? जैसे कि देखो पहले हम देखते हैं कम्युनिकेटिंग। एज वी नो कम्युनिकेटिंग, व्हाट इज कम्युनिकेटिंग? कम्युनिकेटिंग रेफर्स टू द आर्ट, इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट, डेफिनेटली मैनेजमेंट इज एन आर्ट, है कि नहीं? सो कम्युनिकेटिंग भी एक आर्ट ही है। किस चीज का आर्ट है?
कि दैट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग योर आइडियाज, व्यूज, कॉन्सेप्ट, थिंग्स, थॉट्स, क्लियर, टू अदर्स so that they can understand your feelings, what you want, and they can follow you. Clear? They can follow you and can achieve what you want. Clear? आ रहा है समझ में? कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हम जो सोच रहे हैं, वो कैसे दूसरों को समझा पाए, ताकि हम जो समझ रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो दूसरे समझ के वो काम कर पाए. दैट इज कम्युनिकेटिंग. वो है मैनेजमेंट का मेन काम, क्योंकि मैनेजमेंट पर्सनल्स वो तो काम खुद नहीं करते हैं, वो दूसरे से करवाते हैं. क्लियर? दे एक्ट. क्लियर? मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेट थिंग्स डन थ्रू अदर्स. अदर्स करेंगे, हम नहीं करेंगे. तो अदर्स कब करेंगे? हम समझाने के बाद हम उनको समझाएंगे कि ये करो. Clear? That means we must transfer our thought, idea, concept, thinking to those persons so that they can understand and can do the effort and can fulfill what we want. Clear? That is directing. So we can say directing is the art of transferring our idea, thoughts, feelings, clear, concept to the employees, to the workmen, so that they can perform according to our mind, according to our thing, our concept, according to our thoughts. Clear? जो कि हमें चाहिए, क्योंकि the leader, the director जो डायरेक्शन देता है, जो ग्रुप को लीड करता है, वो क्या करता है? वो ही समझ, मतलब उसी को समझ में आता है. पहले वो समझता है कि हमें व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, कि वो ऑब्जेक्टिव को हमें पाना है. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है अपना काम कर रहे हैं, कि ऐसे काम करने से वी विल अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. तो वही चीजों को वो अपने एम्प्लॉय को समझाएगा कि काम ऐसे करो, ये टेक्निक यूज करो, ये मेथड यूज करो, ऐसे करो, इतने टाइम पे करो, ताकि हमें अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए. ठीक है? क्लियर? सो कम्युनिकेटिंग, एंड एज आल्सो वी नो कि कम्युनिकेटिंग मस्ट बी ए two-way communication. There must be a two-way communication. है कि नहीं? two-way मतलब क्या है? पहले तो जो कि है डायरेक्टर, द लीडर, वो टीममेट्स को, सबऑर्डिनेट्स को समझाए कि ये करना है. दैट इज अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी. क्लियर? अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी डायरेक्टर व्हाट डू? डाउनवर्ड. अथॉरिटी और डायरेक्टिंग, ठीक है, वो डाउनवर्ड बोल देगा कि ये करो. होने के बाद वो लोग जब करेंगे, दे कैन ओनली फील द रियलिटी. है कि नहीं? कि चलो मैंने कुछ पकाया, मैंने कुछ डिशेस बनाए, है कि नहीं? फिर आपको लेके सब क्या सर्व हुआ नीचे, वो कैसा लगा, अच्छा कि बुरा, वो कौन बोलेगा? ऑब्वियसली जिन लोगों ने उसको फेस किया. है कि नहीं? और चलो ले लो कि मैनेजर ने बोला कि मुझे आज के दिन में इतना प्रोडक्ट सेल करना है. डायनेमिक सिचुएशन है, सिचुएशन अलग है, कंडीशन अलग है. आप लोग जाके मुझे ये 1000 पीस सेल करके आओ मेरे लिए आज. तो काम करने कौन जाता है? द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, द सेल्स पर्सन्स. वो लोग ग्राउंड में जाके सेल करते हैं. है कि नहीं? तो जो डायरेक्टर ने जो स्ट्रैटेजी एडॉप्ट किया था सेल करने के लिए, वो सही से काम में आया कि ना आया, वो कौन फील करेगा? जो फील्ड में गया है सेल करने के लिए, वही फील कर सकता है. तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि सर आपने जो दिमाग लगाया था, आपने जो आइडिया, जो मेथड, जो डायरेक्शन दिया था, दैट एक्ट प्रॉपरली बेस्ट, उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. सो दैट नेक्स्ट टाइम भी आप वही करो. मीन्स टू वे होने से क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन इज ए सोर्स फॉर नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल एफर्ट. आप नेक्स्ट काम को, अगला काम बहुत अच्छे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, बेस्ट अपॉन योर लास्ट परफॉर्मेंस. और नहीं तो बोलो कि वो लोग बोले कि सर वो जो आपने जो बोला था वो पूरा प्रॉपर मतलब अच्छा नहीं गया, द आइडिया वॉज वेरी बैड,
और लिटिल बैड, अच्छा नहीं लगा, कि नेक्स्ट टाइम आप सर इसको ऐसा चेंज कर दो, दैट इज ऑल्सो ए फीडबैक, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक, जो ग्राउंड फ्लोर जो वर्कर्स ने दिया कि इसके हिसाब से हमें पता चला कि नहीं ये जो मेथड है वो गलत है, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया करेंगे, वो जो सजेशंस दिया है उसको हम फॉलो करेंगे, है कि नहीं? तो इट मस्ट बी टू वे कम्युनिकेशन, मतलब बॉस सबऑर्डिनेट्स को भी समझाएंगे कि क्या करना है, फिर सबऑर्डिनेट्स बॉस को भी, सुपीरियर को भी बोलेंगे सर आपने जो बोला था ऐसे ऐसे करना है वो बहुत सही गया और बहुत गलत गया और थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको आप नेक्स्ट टाइम ऐसे चेंज कर दो, है कि नहीं? तभी जो है अपना काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। सो बोथ वे कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। ऑथोरिटी गया इधर और फिर गया क्या, फीडबैक। क्लियर? फीडबैक जो कि क्या लगा, अच्छा बुरा, नीचे से ऊपर, कि अच्छा लगा बुरा लगा क्या लगा। क्लियर? ओके, सो by communication we can say that communication is the art of transferring idea, thoughts, concept, clear, thinking from one mind to another, or here in this perspective we can say the exchange of idea, thoughts, the way, the method from the superior to the subordinate, so that the subordinate can perform better for the achievement of the objective. Clear? It also indicate the subordinate must have a proper communication channel to send their feedback to the superior, so that the superior can act to rectify his own direction, so that will act properly, so that it will have some positive impact in the next objective. Clear? Okay, we must have maintain a two-way communication in the management, so that it will help not only to the superior but also to the subordinate and combinedly to the whole management team. Okay, clear? आ गया समझ में? देखो मैं समझा रहा हूं आपको, मैं वो ये चीजों को डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। द इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप अगर आप एक बार अंडरस्टैंड कर गए, दिमाग में आ गया, तो उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है? तो दैट इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अपना आ गया क्या, कम्युनिकेशन करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग, ओके? क्या है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स? एज वी नो, सी मोटिवेट, देखो एज ऑल द ह्यूमन बींग्स, जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑल क्या है, ह्यूमन बींग्स है, एम्प्लॉयज है। क्लियर? तो दैट इज ए ह्यूमन बिहेवियर टेंडेंसी कि हर एक आदमी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई टाइम पे डिप्रेस हो जाता है, उसका मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है। क्यों डाउन होता है? देयर आर सेवरल रीजंस। इट मे बी सम पर्सनल रीजन, it may be some professional reason, it may be physical reason, it may be mental reason। कोई भी रीजन हो सकता है आपके मोरल लो होने में, डिप्रेस होने में। आप मतलब डिप्रेस, मोरल बूस्ट मतलब आप है, काम में है, ऑफिस में है, बट काम नहीं कर रहे हैं, आपको काम करने का इच्छा, चाह नहीं हो रहा है अभी। क्यों? क्योंकि सोचो कि आप यू मे फेस सम पर्सनल प्रॉब्लम, some professional problem or some clear mental और physical problem। mental problem आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे घर में कोई बीमार है, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं क्या करूं, कैसे करूं, because of that you feel very depressed। clear? आपको काम में दिमाग नहीं लग रहा है, you cannot concentrate on your work। clear? सोचो कि आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, आपका आई साइट थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको बुखार है, इसके वजह से यू आर नॉट स्पॉन्टेनियसली कैन वॉक इन द ऑफिस, दैट इज ऑल्सो ए रीजन। और दूसरा हो सकता है कि इट मे बी सम पर्सनल रीजन, जो मैंने बोला कि पर्सनल, आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, पर्सनल आपको वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं लग रहा है, आपका दिमाग, आपको तबीयत खराब है, आपका कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम है
है कि नहीं? आपको ये काम समझ में नहीं आ रहा है, बॉस ने जो बोला ऑर्डर वो आपको समझ में नहीं आया, कोई पर्सनल प्रॉब्लम होता है। और प्रोफेशनल प्रॉब्लम मतलब जो प्रोफेशन को रिलेटेड, कि आपके जो स्टाफ है आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, आपके बॉस आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम सिचुएशन में डाल रहे हैं, जानबूझ के ऐसा काम दे रहे हैं जो कि आपके द्वारा नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, जिसके वजह से मोरल डाउन होता है और काम नहीं होता है। और व्हेन द मोरल इज डाउन यू कैन नॉट वर्क इफिशिएंटली। तो एज ए लीडर, एज द बॉस, एज द डायरेक्टर, it is the duty of the director, team leader, boss, the superior, कुछ भी बोल सकते हैं, to motivate them। तो मोटिवेट का मतलब क्या है? मोटिवेट मतलब to boost up the morale of employee, boost up the morale of employee, boost up the morale of एम्प्लॉय का जो मोरल है, जो चल रहा है दिमाग में, मोरल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। मोरल मतलब जो ना जिल, क्लियर? अपना मतलब जो अंदर से जो आता है, द इनर वॉइस, द जिल, है कि नहीं? मतलब योर इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट वॉइस कि मैं कर सकता हूं, योर कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू, दैट इज योर जिल, दैट इज योर मोरल। इफ यू हैव मोरल boosted, if you have boost moral, then you can do whatever you want. But if you have no moral, then irrespective of your physical and potential strength, you cannot do anything. तो motivating का मतलब boost up the moral of employee, है कि नहीं? It is the duty, it is the work of the superior to boost the moral of the employee. कैसे boost करना है? बस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। जो प्रॉब्लम के वजह से, जिस प्रॉब्लम की वजह से आवर एम्प्लॉइज आर इन लो मोरल, यू जस्ट नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है और पर्सनल प्रॉब्लम है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको क्या कर सकते हो? बूस्टअप कर सकते हो, सॉल्व करके बूस्टअप कर सकते हो। सो मोटिवेट के लिए हमारे पास बहुत सारे, वी हैव लॉट ऑफ टूल्स, टेक्निक्स टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। क्लियर? दैट इज अनदर चैप्टर जिसको हम बाद में देखेंगे, मोटिवेशन। क्लियर? बट नाउ आई कैन से सम फ्यू थिंग्स कि मोटिवेट मतलब टू बूस्ट अप द मोरल। क्लियर? तो मोरल जो उन लोग का डाउन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम पर्सनल, क्लियर, प्रोफेशनल प्रेशर, पर्सनल और प्रोफेशनल रीजन, और फिजिकल और मेंटल प्रेशर। क्लियर? तो वो चीजों को हम ओवरकम कर सकते हैं जिससे कि वो जो एम्प्लॉय का मोरल हो वो बूस्ट अप हो पाए और वो अपना काम फिर से अच्छे से कर पाए। क्लियर? तो उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है? क्लियर? देयर आर टू बेसिकली वे ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। Clear? There are basically two ways of motivating the student, motivating the employees. Clear? Financial and non-financial. देखो स्टूडेंट्स, हर एक को मोटिवेट करने का ये दो जो हम बोल सकते हैं कि कॉमन तरीका है, वे है। वेदर इट इज स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय, कोई भी हो, बच्चे भी हो, इफ यू वांट टू मोटिवेट समवन देन यू कैन डू इट बाय टेकिंग टू डिफरेंट स्टेप्स, that is financial aid and non financial aid. Aid मतलब the tools, financial मतलब क्या है? You provide them some financial help and financial opportunity, some financial amenity, incentive, so that they feel that my problem can be solved, will be solved by using that particular finance, and they can think that yes, now my problem is solved, I can do what is supposed to or what is obliged to me.
जिसके लिए मैं ओबिलाइज हूं, मैं वो कर सकता हूं, है कि नहीं? फाइनेंशियली मीन्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ द कंसर्न पीपल टू whom we are motivating. ओके, तो क्या हो सकता है? इधर आप बोलो कि मैं आपको प्रमोशन दूंगा, है कि नहीं, कि बोनस दूंगा, प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, क्लियर? प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, सैलरी हाइक, क्लियर? लीव सैलरी, ये सब क्या है? फाइनेंशियल एड्स है, जिससे कि आप अपने एम्प्लॉय को बूस्ट कर पाओ, ताकि वो अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए। पर्सनल प्रॉब्लम है, आपने उनको लीव सैलरी दिया कि जाओ तुम आराम से जाओ, अपने घर पे जाओ, 5-10 दिन लीव, आपको कोई भी सैलरी में कट नहीं होगा, आप जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके आओ। सो दैट इज ए वे टू मोटिवेट देम। वो 5 दिन के बाद जब आएगा पूरा बूस्टेड हो गया रहेगा, है कि नहीं? मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थैंक यू सर, आपने जो मेरे लिए जो काम किया, मुझे जो हेल्प किया, दैट इज वेरी क्लियर, ग्रेसफुल, एंड आई विल डेफिनेटली विल रिटर्न इट बाय माय एफर्ट। आपके लिए मैं डबल काम करूंगा, वो बोल सकता है कि नहीं? जो 5 दिन आपने उसको छुट्टी दी, उसे उसका जो मोरल बूस्ट हुआ, वो नेक्स्ट 5 दिन में आपको 20 दिन का काम करके देगा। क्लियर है कि नहीं? ये सच्चाई है, दिस इज द फैक्ट। इफ यू कैन विन the moral, the heart of the employee, then the employee can lead you to the top position. But if you cannot, then if you fail to win their heart, then definitely they may not lead you to the top position, clear? Nor they lead you to the lower position, they destroy you. You are in stable position. आप जिधर हो उधर ही रह जाओगे, ना तो वो आपको हेल्प करेंगे ऊपर जाने के लिए, ना तो नीचे जाने के लिए कोई दूसरा काम करेंगे, बस वो स्टेबल ही रहेंगे, ना तो आप ऊपर जा पाओगे, ना तो आप नीचे जा पाओगे। सो ऑलवेज जस्ट ट्राई टू विन द हार्ट ऑफ द एम्प्लॉई, ताकि वो लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। क्लियर? दैट इज द मोरल, दैट इज द मोटिवेटिंग, दैट वी से मोटिवेट। क्लियर? सो फाइनेंशियल हो गया, बाकी नॉन फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। क्लियर? नॉन फाइनेंशियल मतलब जिसमें कि फाइनेंस का कोई नहीं है, बस हम उसको कोई अदर तरीके से दे सकते हैं उनका प्रॉब्लम, जैसे कि सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्लियर? सॉल्विंग प्रोफेशनल प्रॉब्लम, जो कि मैंने बोला कि मेरा कंप्यूटर का सिस्टम बहुत खराब हो गया है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है, मेरा आईसाइट में प्रॉब्लम है, मुझे देखने को नहीं हो रहा है, मैं काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, कि एनी प्रॉब्लम, मेरा जो कलीग है वो मुझे परेशान कर रहा है कि नहीं? और मैं एक लेडी स्टाफ हूं, और मेरे जो ब्रांच में मुझे जो डिप्लॉय किया गया है वो ब्रांच में ओनली मेल स्टाफ है, इसलिए फॉर दैट रीजन आई फील लिटिल ऑकवर्ड टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. So that's why my management team decide to transfer me to another branch where other lady staffs are there. तो यह है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. इससे मोटिवेट हो गया कि मुझे लगा कि चलो मेरे मैनेजमेंट ने, मेरे बॉस ने मेरे लिए इतना सोचा कि ये एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए मुझे एक अच्छे एनवायरनमेंट में लेके रख दिया. और नहीं तो चलो आपका जो केविन है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको प्रोफेशनली सॉल्व कर रहे हैं. क्लियर? बाय सम नॉन फाइनेंशियल एड like education provide to your family. Clear? Entertainment है कि नहीं? एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, ये सब वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड करके जो मैनेजमेंट टीम कैन बूस्ट योर मोरल. ओके, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन. क्लियर? सो बाय मोटिवेशन वी कैन सिंपली से motivation means to inspiring the subordinates, to motivate them, to boost up their moral. Clear? While they have low moral to work. Clear?
because if a employee work with low morale, then whatever they do, that lead to waste. वो waste में जाएगा, वो that will not supposed to fulfill your objective. So that's why it is the responsibility of the leader, of the boss, of the director to boost the morale of the employee, to inspire them to work efficiently, effectively for the successful complete of the objective. जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? For that purpose we have to motivate them with financial and non-financial aids. Clear? Okay? So then next is supervising. Supervising. You know student, what is supervising? Supervising is also an important element. जिसका मतलब क्या होता है? Supervise मतलब to have a look, having look over your work, observe करना. Clear? Observe करना. कीपिंग आई अपॉन, आपके ऊपर आंखें रखना, आपके काम को कंटिन्यूसली देखना, ऑब्जर्व करना, है कि नहीं? क्लियर? इसको हम बोलते हैं सुपरवाइजिंग. मतलब सुपरवाइजिंग मतलब द बेसिक मीनिंग इज द डायरेक्टर, द टीम लीडर, द बॉस, द सुपरवाइजर हैव टू priorly they mention, they inspire you, they order you that this is what I want from you. Clear? And then will let you to do. Then supervising means the director continuously have a look over your work, supervise you, guide you. Clear? That whether you are working as per the plan, as per the instruction, as per the order or not. If you act as upon edge directed by your boss, superior, then it is good, very good. Then it will definitely assurance that आपको assure हो जाएगा कि I will definitely, that employee is doing what I want, and then definitely I will achieve my objective. But if you find that this staff, this employee is not working as per my point of view, as per my suggestion, as per my order, then we will definitely interrupt that employee and again guide them to do as like that. Clear? So supervision से क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपने जो बोला वो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, हो रहा है कि ना हो रहा है, वो समझ में आ पाएगा. अगर हो रहा है तो सही है, इट विल प्रोवाइड यू एश्योरेंस कि चलो फाइनली मुझे एंड रिजल्ट में अच्छा मिलेगा. अगर नहीं हो रहा है देन इट इज एन अलार्म टू यू कि उसको चेंज करो, अभी चेंज कर दो. अगर खत्म होने के बाद चेंज करोगे तो रिसोर्सेज भी खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया एंड एफर्ट भी खत्म हो गया, बाकी मिला क्या? जीरो. तो एंड में जाके अगर पता चले कि गलत हो गया, उससे बेहतर है जिधर गलत हुआ उधर ही पता चल जाए, तो आप इमीडिएटली मेक करेक्शंस. सो सुपरविजन इज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जिससे कि डायरेक्टर को पता चलता है कि यस अभी ये जो काम बिगड़ गया, अभी इसको सही करना है. क्लियर? अच्छे से गाइड करना है ताकि वो जो काम जिधर से बिगड़ा उधर से फिर से वो अच्छा हो पाए. क्लियर? एंड द वर्क कैन एक्टेड अपॉन आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, clear? That is supervision. So we can say supervision, clear, means basically the superior have eye upon the working of the employee so that they can assure whether the employee act as per the order, instructions given by the superior, clear, or not. If it is yes, then it will definitely lead to achieve the objective. If no, if the employee is not working as per the order, instruction, then you have the appropriate time to change, to guide, to instruct the employee to change their effort so that you can lead to appropriate achievement of your objective. Okay, clear? आ गया समझ में सुपरविजन का मतलब? तो सुपरवाइज करने से क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके माइंड में भी एक चीज आता है कि चलो हमें कोई देख रहा है. जैसे हम बोलते हैं ना, कैमरा लगाए, मतलब वी
हम लोग क्या अपने आप में प्रिकॉटिव हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं कि नहीं कैमरा देख रहा है कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं अच्छे से करूंगा, जो डायरेक्शन है वही करूंगा. सो विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन आल्सो द एम्प्लॉय के अंदर जो भी रहता है, जो इनडिसिप्लिन वो लोग करने का जो मन होता है, सोचो कि हो गया, they will definitely will correct those things immediately because they know that somebody is there to supervise. हमें कोई देख रहा है, हमारा काम कोई चेक कर रहा है, अगर इधर उधर हो गया तो पनिशमेंट मिलेगा, अपना परफॉर्मेंस खराब होगा, उसके हिसाब से हमें जो परफॉर्मेंस अप्राइज होगा we may be upgraded, we may be degraded. तो इसके हिसाब से अच्छा काम करना है भाई. क्लियर? सो उनके दिमाग में एक डर रहेगा कि yes somebody is supervising us, so it will create a discipline in the organization, in the workplace and in the effort of the employees. Clear? Okay. And then finally we can say leading. लीडर, हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है. क्लियर? लीडर का मतलब क्या है? द लीडर इज द पर्सन हु लीड द होल टीम. हर डिपार्टमेंट का लीडर है मैनेजर. वो मैनेजर जो अपने डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में एक लीडर रहता है, दैट इज सेक्शन ऑफिसर. हर सेक्शन में कुछ अलग अलग काम होता है. क्लियर? ग्रुप वाइज हर एक ग्रुप में एक सुपरवाइज होता है, द लीडर. तो लीडर इज द मैन, इज द पर्सन, इज द एम्प्लॉय हु लीड द होल टीम, हु लीड द ग्रुप. क्लियर? अगर लीडर अच्छा हो, जैसे मैंने बोला लीडर डायरेक्टर इज द लीडर. अगर लीडर अच्छा हो तो काम अच्छा होगा, अगर लीडर बुरा हो तो काम बुरा होगा. अगर लीडर अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो स्किल्ड वर्कर भी अच्छा काम करेगा, अनस्किल्ड वर्कर भी अच्छा काम करेगा. बट इफ द लीडर इज नॉट गुड, इफ नॉट वर्क प्रॉपर्ली, इफ देयर इज नो लीडर, देन अनस्किल्ड तो नहीं कर पाएगा, स्किल्ड एम्प्लॉय भी अपना काम नहीं करेगा. क्लियर? सो वी कैन से लीडिंग is the process of influencing, supporting, guiding your teammate, the persons behind you, आपके पीछे जो है. क्लियर? और depend upon you to make them act, clear, according to your wish. Clear? And your wish is the wish of the management. Clear? So that you can achieve your objective timely, actively, efficiently. ओके. क्लियर? सो जो लीडर होता है वो लीडर ही ये सब काम करता है. द लीडर इज कम्युनिकेटिंग, लीडर का काम है. मोटिवेट करना लीडर का काम है. सुपरवाइज करना लीडर का काम है. सो जो लीडर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं लीडिंग. मतलब टीम को लीड करना है. जब तक सोचो कि लीडर एक तब तक नहीं मतलब डिसाइड होता है कि सोचो कि क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम बोला, एक प्रॉब्लम लिखा, मैंने बोला ये कौन करेगा. सबको पता होता है, कोई भी रेज नहीं करता कि मैं करूंगा सर. जब एक हाथ उठाता ना तो उसको देख के हाँ वो उठाया, मैं उठाता हूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अपने आप उठ जाता है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट, पहले कौन उठाया. जब एक उठ गया ना तो उसके बाद सब उठाएंगे. जब तक एक नहीं उठाए तब तक कोई नहीं उठाएगा. दैट इज द टेंडेंसी. मतलब आपको सब काम आता हो भले ही, बट जब तक आपको कोई लीडर ना मिले, लीड करने वाला ना मिले, तब तक यू फील ए लिटिल शाय. आप एक अंदर रहते हो, अंडे के अंदर सेफ जोन में, कि नहीं मुझे एक्सप्लोर नहीं होना है, मुझे बाहर शो ऑफ नहीं करना है कि नहीं, मुझे डिस्ट्रॉय नहीं होना है. होने से में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है. आप पॉजिटिव के बारे में नहीं सोचते हो, आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हो कि मैं अगर पहले हाथ उठाऊंगा सर मुझे बुलाएंगे करने के लिए, अगर गलत हो गया तब सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे, है कि नहीं, मेरा मजाक उड़ जाएगा, मेरा रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा. ये सोच रहे हो कि ये नहीं सोच रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे आ सकता है, अगर मैं जाके कर दिया तो मुझे क्लास में पूरा रिस्पेक्ट मिलेगा. वो नहीं सोच रहे, आप सोचते हो कि सिर्फ नेगेटिव सोचते हो. दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी. पहले कोई भी काम करने से पहले हम उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बाद में आता है. जब एक दो लोग वो करते हैं, हमें बोलते हैं, तभी हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है, उससे पहले नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है. Because of which we are not get ready to leading us. So that's why it is important to lead a leader. एक लीडर हो ना तो लीडर जो करेगा वो पूरा ग्रुप उसको फॉलो करेगा, है कि नहीं. So that's why leading is also an important element of directing. Okay,
क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसके हिसाब से वी हैव कंप्लीटेड दैट द फंक्शन द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. क्लियर? एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस टू मोर थिंग्स. देखो स्टूडेंट्स, हर एक फंक्शन का जो है ना दो चीज, उसका मीनिंग समझना, मीनिंग डेफिनेशन और फीचर. ये अगर आ गया ना समझ में तो बाकी चीजें और कुछ नहीं है कि नहीं? सो नाउ वी कैन से और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. क्या है फीचर? जैसे कि कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. मैंने बोला है कि क्या है कि इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. It is continuous process. Obviously, लीडिंग कभी भी खत्म नहीं होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है. As like other management function, it is a continuous process. Clear है कि नहीं? कंटिन्यू चलता रहता है. The leader is used to lead the team somehow, supervise the team, lead the team, motivate them, clear, communicate with themselves, so that the work must go on and on. चलता रहे हमेशा. अपने तरफ से खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होता है. The leader used to get feedback from the teammates कि अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, clear, which point is proved to be good, which point is bad, which point is the average, so that accordingly we can set our next plan. है कि नहीं? So that's why we can say it is a continuous process. Okay? Next, it is goal oriented. Yes, obviously, yes or no? Because our direction must be towards the goal. हम डायरेक्शन क्या देते हैं? क्यों देते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव से पहुंचने के लिए. अगर ऑब्जेक्टिव कोई नहीं होता तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. चलो कोई भी अपना अपना काम करो, जिसको जैसे पसंद हो वो करो, है कि नहीं? हम बोल सकते थे क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ हमें अचीव नहीं करना है. बट हियर वी हैव टू अचीव, वी हैव लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू कंप्लीट दोस ऑब्जेक्टिव विद ग्रुप एफर्ट. So that's why we set our objective, then we assign duties accordingly, and the direction is happen according to our plan to achieve the objective. That is goal oriented. जो अपना goal है, to achieve that goal we direct our employees, our subordinates, so that they can act as per our instructions, as per our way, method, clear, so that we can achieve the objective. Clear? So it is definitely described that the directing is obviously a group, is obviously a goal oriented process. Clear? Okay. Next we can say another important, that is it is pervasive. Pervasive मतलब the directing is such a thing, is such a function, जो कि मैंने बोला टॉप में भी है. टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं वो भी डायरेक्शन देते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर वो भी डायरेक्शन देते हैं, लोअर लेवल के जो सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर वो भी डायरेक्शन देते हैं, है कि नहीं? हर कोई अपना ग्रुप को, मतलब लीडर, डायरेक्शन मतलब लीड, हर कोई लीड करता है. एवरी पर्सन इज सपोज टू लीड देयर correspond their responsible group, so that the group effort can be achieved accordingly. When we combine each group effort, we get the combined organizational effort, combined organizational objective. Okay, so it is pervasive in the sense that directing is important and present in each and every functional level, that is top, middle, lower, clear, and also at the ground level, the functional level, है कि नहीं? मतलब and in each and every organization, whether it is small, medium, large, clear, any whatever may be the objective, we must direct our teammates, our subordinate to work. Unless we direct them, a skilled worker is also fails to perform. Clear? So that's why we can say it is a pervasive function.
Clear? It is present all over the management. Clear? Next we can say डायरेक्शन इज, और डायरेक्टिंग लिखते हैं, डायरेक्टिंग इज डायनामिक एंड सिचुएशन बेस्ड. डायनामिक एंड सिचुएशन बेस्ड. ऑब्वियसली जो डायरेक्टर होता है, देखो एक ही डायरेक्टर हर एक टाइप का मूवी बनाता है, एक ही डायरेक्टर, एक ही मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाता है. इट मींस दे हैव सम डायनामिक पर्सपेक्टिव, दे हैव सम डायनामिक फीचर, डायनामिक क्वालिटी, कि सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन बेस्ड डायरेक्शन देना है, लीड करना है टीम को, मोटिवेट. जैसे मैंने बोला मोटिवेशन इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कि जब हम मोटिवेट करते हैं, there are many reasons of motivating, that is a dynamic factor, situation based. अगर सोचो कोई एक एम्प्लॉय मतलब बहुत ही फाइनेंशियली साउंड है, तो उसको हमें नॉन फाइनेंशियली वे से मोटिवेट कर पाएंगे. फाइनेंशियली वी कैन नॉट मोटिवेट देम बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फाइनेंशियली साउंड, सो दैट इज सिचुएशन बेस्ड. वही सुपीरियर बॉस और दूसरे एम्प्लॉय जो कि फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उनको फाइनेंशियली ऑफर करता है, फाइनेंशियली मोटिवेट करता है. दैट इज अ डायनामिक सिचुएशन, है कि नहीं? दैट मींस द बॉस, द सुपीरियर, द टीम लीडर कैन मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू डायनामिक सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन विथ द डिमांड. व्हाट द डिमांड, द सिचुएशन डिमांड. सिचुएशन जो डिमांड करता है उसके हिसाब से वो काम करता है, उसके हिसाब से वो डायरेक्शन देता है. क्लियर? इट आल्सो व्हाइल वी आर गोइंग फॉर सुपरविजन, जैसे मैंने बोला सुपरवाइज कर रहे हो, काम अच्छा हो रहा है, इट इज एश्योरेंस कि चलो बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपको एश्योरेंस मिला कि सही है. इफ द वर्क इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर प्लान, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, योर डायरेक्शन, देन यू कैन चेंज इट. क्लियर? दैट इज आल्सो सिचुएशन. So you always direct according to situation, or we can say the direction is a dynamic and situation based concept. Situation के हिसाब से ही होता है डायरेक्शन. हर टाइम पे हर जगह पे एक ही टाइप का डायरेक्शन नहीं होता है. It is purely depend upon situation. What situation demand, accordingly the director will direct, will lead, will guide, will order the teammates. Clear? Next we can say it is human oriented. ह्यूमन बीइंग लिखते हैं, ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड. जैसे मैंने बोला कि जो डायरेक्शन काम है एक डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग का है, एंड डायरेक्टिंग इज आल्सो टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग. जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं, द बेस्ट एम्प्लॉय, वो कैसे काम करेंगे, अच्छे से कैसे उन लोगों का काम होगा, क्लियर, कैसे उन लोगों का काम एक ऑब्जेक्टिव के तरफ जाएगा कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा, उसके लिए ही हम काम करते हैं, है कि नहीं? सो दैट इज डेफिनेटली इट इज ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड, है कि नहीं? ह्यूमन बीइंग से ही होता है, उसके लिए ही होता है, बाय द ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग. सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड, उसके हिसाब से ही होता है. क्लियर? देन नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इट फ्लोज डाउनवर्ड, है कि नहीं? डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मीन्स टॉप टू बॉटम. ओनली योर सुपीरियर कैन डायरेक्ट योर सबऑर्डिनेट, ओनली सुपीरियर कैन सुपरवाइज, कैन लीड, कैन ऑर्डर, कैन कमांड, can motivate, can communicate, clear, to your subordinate, है कि नहीं? That is the direction is always flow from top to bottom, because direction is a top level function, means it's a superior function which is done by the group leader, by the team leader, by the superior towards why? Because in the direction we supposed to direct our subordinates to do according to our wish.
Clear? So that's why it is always, it is definitely move from top to bottom. Clear? Because of it flow or it move from top to bottom, we call it, clear, or we call the flow is downward. Clear? Okay. And next students, that is more important, it does not follow any rule but follow situation. जो कि ये पॉइंट हमने बोला था सिचुएशन बेस्ड, कि ये कोई रूल नहीं है. सोचो कि आप अगर एक बार अच्छा डायरेक्शन दे दिए तो इट डज नॉट मीन इन द नेक्स्ट टास्क यू विल बी द लीडर. आपको एक प्रोजेक्ट में, एक ऑब्जेक्टिव में अगर लीडर बना दिया गया है, यू मस्ट नॉट थिंक कि इन द सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट आल्सो यू विल बी द लीडर. नो, बिकॉज इट इज नॉट फॉलो एनी रूल. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अगर एक बार डायरेक्शन कर दिए तो अगली बार भी कर पाओगे. नो, इट इज प्योरली सिचुएशन बेस्ड. इट इज डिपेंड अपॉन सिचुएशन. सिचुएशन के हिसाब से हमें जो सही लगेगा हम उसको लीडर बनाएंगे, है कि नहीं? कि चलो अभी हम मार्केटिंग में गए हैं तो मार्केटिंग में जो है डिफरेंट सिचुएशन फील्ड ऑफिसर जो हैं, उनमें से हम एक को लीडर बनाएंगे डेफिनेटली. तो हर टाइम पे हम कोई एक को ही लीडर नहीं बनाते हैं. इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन डायनामिक कैलामिटी, सॉरी डायनामिक एनवायरमेंट, है कि नहीं? कि एनवायरमेंट क्या सपोज करता है, एनवायरमेंट क्या डिमांड करता है, उसके हिसाब से कौन अच्छा डिसीजन ले पाएगा. अगर सोचो कि बरहमपुर और एक पर्टिकुलर एरिया में हमें कंसंट्रेट करना है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में जिसके पास अच्छा नॉलेज है, द डायरेक्शन टास्क इज assigned to that particular person. If we rose to some other territory, then will definitely depend upon that a person who belongs to that particular territory. Clear? So ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये जो डायरेक्टर है ये हर कोई ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएगा. क्लियर? और ऐसा ही होगा, ये करने से ही होगा. नो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डायरेक्शन करने का. इट इज एन आर्ट, है कि नहीं स्टूडेंट्स? इट्स एन आर्ट. और आर्ट का कोई रूल नहीं होता है. इट इज प्योरली सिचुएशन बेस्ड, कि कब कोई सिचुएशन आ गया उसको आपको फॉलो करना है कि नहीं? क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. ओके, होप all get clear about the features of directing. Okay, then last but not the least, we discuss the function, okay, of directing, the function or importance. मतलब डायरेक्टिंग क्या क्या काम करता है और कौन से काम को अचीव करने के लिए we generally depend upon directing or we perform directing. The importance or the function of directing. Okay, so first of all we can say directing क्यों चाहिए? What is the function? The first function we can say it initiate the action. Clear? It initiate the action, or we can say it implement the plan. जो हमने प्लान किया था उसको इंप्लीमेंट कौन करवाता है? डायरेक्शन. बिकॉज सी, जब तक आपको कोई डायरेक्शन ना दे कि करो, अनलेस somebody order you, command you, supervise you, lead you, clear, guide you to do, you never start that action. So with directing only the action is initiated. Action means काम.
अभी से पहले जो हम कर रहे थे वो क्या था? सब प्लानिंग, हम प्लान कर रहे थे, ये करेंगे, वो करेंगे, या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ताकि हमें ऑब्जेक्टिव मिले। एक्चुअल काम कभी शुरू होता है? डायरेक्टिंग, है कि नहीं? तो इट इनिशिएट एक्शन, इट मीन्स द डायरेक्टिंग इज द ओनली एलिमेंट, इज द ओनली फंक्शन which initiate the action. It means unless you direct, unless you order, unless you command your subordinate to work, they will not start their work. Clear? उसका दो रीजन होता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी, जब तक आप नहीं बोलोगे नहीं करोगे, और दूसरा आपको पता नहीं कि काम कैसे होना है, जब तक आपको लीडर नहीं बोलेंगे कि ऐसा करना है, आप नहीं फॉलो कर पाओगे, तो टिल दैट यू वेट. क्लियर? So that's why with directing only the actions are initiated. So it is the first function or the importance of directing. क्योंकि अगर डायरेक्टिंग ना होता तो एक्शन इनिशिएट ना होता. इनिशिएट मतलब स्टूडेंट स्टार्ट द एक्शन, काम शुरू होता है डायरेक्शन से ही. ओके, सो नेक्स्ट वी कैन से डायरेक्शन का दूसरा है इट communicate the objective, or it communicate the group objective, it communicate the group objective with each individual. है कि नहीं? कि जो कि ऑब्जेक्टिव वो डिसाइड होता है कहां? टॉप लेवल में डिसाइड होता है. क्लियर? तो टॉप लेवल मैनेजर अपने अपने चेन के हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं, है कि नहीं? सोचो अगर कम्युनिकेशन होता है तभी हमारे जो ग्रुप के जो ग्राउंड फ्लोर के जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ हैं, जिन लोगों को हमने ढूंढ के लाया है काम करने के लिए, उन लोगों को समझ में आता है कि ओके दैट इज सपोज टू डन बाय अस. क्लियर? और इज टू बी डन बाय अस, हमें ये करना है कि नहीं? कि हमको पता चला कि ये हमें चाहिए, ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट. दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव वी हैव टू अटेन, वी हैव टू अचीव. क्लियर? सो डायरेक्शन के वजह से ही कि अच्छे से कम्युनिकेट होता है ग्रुप ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द टॉप पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्लियर ग्रुप ऑब्जेक्टिव टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. हर एक जन को पता चलता है कि यस दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव एंड वी हैव टू फॉलो दिस द सर्टेन क्राइटेरिया, द सर्टेन एक्शंस टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. ओके, क्लियर? नेक्स्ट वी कैन से it motivates the employee to boost their morale, एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करने के लिए डायरेक्टिंग नहीं काम आता है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट मोटिवेट द एम्प्लॉय टू बूस्ट देयर मोरल, बिकॉज बूस्टिंग द मोरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपका मोरल बूस्टेड है तभी आप काम कर पाओगे. अगर मोरल बूस्टेड नहीं है, डाउन है, तो काम नहीं कर पाओगे. आपको मतलब अनलेस क्लियर इट इज irrelevant हाउ efficient you are, how skilled you are, but if you have a problem, then irrespective of your skill, irrespective of your talent, productivity, your performance, your efficiency, your effectiveness, you may prove unskilled. Clear? But with the most dynamic giant moral boost, a unskilled worker can also do what we have not predict. Clear? What we may not estimate. हम जो सोच भी नहीं सकते वो भी कर देता है एक अनस्किल्ड एम्प्लॉय और विथ हाई मोरल, हाई बूस्ट, है कि नहीं? बट अगर बूस्ट डाउन हो तो जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है
वो भी कभी कभी फेल हो जाता है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई इट इज द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टिंग टू बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय बाय मोटिवेटिंग देम. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, to lead the team or group or section or department to act upon fulfillment or achievement of organizational objective. yes or no? कि डायरेक्टिंग से एक लीडर आता है. जो लीडर है वो लीडर अपने टीम को, है कि नहीं, ग्रुप को, सेक्शन ले लो, डिपार्टमेंट ले लो. जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. द ग्रुप में बी we can call group as a team, group, section, department. ये सब में जो जो टीम बनाए गए हैं सब में अच्छे एम्प्लॉयज हैं, but unless we lead them they cannot spontaneously work toward the attainment of the objective. जैसे मैंने बोला क्लास में हर एक बच्चा अपने हर स्टूडेंट्स अच्छे करते हैं, पोटेंशियल हैं, उनको आता है. बट जब तक आप एक स्टूडेंट का हाथ ना रेज हो तब तक कोई रेज नहीं करता है. सब अच्छे हो तब भी तो एक बच्चा तो चाहिए. सो वो बच्चा कौन देता है? एक लीडर चाहिए. वो लीडर कौन देता है? डायरेक्टिंग के वजह से हमें एक लीडर मिलता है जो कि पहले रेज करता है हैंड. उसको देख के पूरे जो हैं ग्रुप वाले, हर एक डिपार्टमेंट सेक्शन के जो एम्प्लॉयज हैं, हर कोई अपने अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए क्या होता है? इनिशिएटेड होता है. क्लियर? सब्सिक्वेंटली स्पॉन्टेनियसली आता है कि चलो अपने लीडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो लीडर है वो समझ जाएगा, वो हमें बचा लेगा, है कि नहीं? वो हमें समझा देगा कि ये करना है, ऐसा करना है. ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंस और फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग दैट इट प्रोवाइड ए लीडर टू द ग्रुप, because of which we can perform our objectives, we can perform our functions to achieve the objective. Okay, clear? Next we can say kuch provide stability, clear, and integrate people. Provide stability and integrate people and employee. Clear? कि डायरेक्शन और क्या होता है कि इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि करना क्या है. स्टेबिलिटी, your mind must be stable, in a stable form. You must be clear cut idea. You must have clear cut knowledge that what you will do, what is supposed you to do, what is expected from you. कि मुझे करना क्या है. जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव रखो, एक एम रखो. एम के ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली वो अचीव करोगे. अगर एमलेस जाओगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे. दैट मीन्स स्टेबिलिटी इन योर माइंड रिगार्डिंग योर ऑब्जेक्टिव. क्लियर? सो डायरेक्शन से क्या होता है? द ग्रुप लीडर, द टीम हेड, द सुपीरियर will primarily instruct the subordinates that this is what supposed you to do, this is what expected from you. तो क्या होता है? उनके दिमाग में पूरा क्लियर कट स्टेबिलिटी आ जाता है कि यस हमें ये करना है, इसके बदले में और कुछ नहीं सोचना है. ये कब होगा कंप्लीट, ये कैसे अच्छे से कंप्लीट होगा, बस उसी के ऊपर अपना दिमाग रहेगा और बाकी चीजों को छोड़ दो. बाकी और चीजों को हमें नहीं देखना है, बस ये कैसे कंप्लीट होगा हमें बस वही देखना है. ठीक है कि नहीं? तो इट विल क्रिएट स्टेबिलिटी इन द माइंड ऑफ द subordinates so that accordingly they can act
स्टेबली, बिकॉज अगर माइंड स्टेबल ना होगा तो आप सांप की तरह, स्नेक की तरह एमलेस जर्नी करोगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता अगर. बट विथ डायरेक्शन इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू व्हेयर यू वांट टू रीच, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से हर कोई काम करता है. क्लियर? एंड इट आल्सो इंटीग्रेट एम्प्लॉइज. ये ऑब्वियसली इंटीग्रेट होता है क्योंकि डायरेक्शन से एक टीम बनता है. एक टीम एक स्टेबिलिटी के ऊपर, एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा काम करता है. दैट मीन्स द कोऑर्डिनेटेड, ए प्रॉपर प्लान, ए प्रॉपर डायरेक्शन will definitely coordinate your team and will integrate your team, integrate your employee to act upon a common objective. एक common objective के लिए आप लोग काम कर सकते हो with a help of stability and integrity. तो ये दोनों चीज किससे मिलता है हमें? From direction. अगर अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छा बॉस हो, अच्छा टीम लीडर हो, तभी वो स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेट करके रखता है अपने एम्प्लॉय को, ताकि वो जो है ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो सके. क्लियर? ओके. नेक्स्ट और क्या होता है इससे? और क्या मिलता है कि इंक्रीज क्रिएटिविटी, क्लियर, परफॉर्मेंस. उससे और क्या होता है कि क्रिएटिविटी इंक्रीज होता है. क्योंकि अगर हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टाफ हैं, ठीक है, उन लोगों को जब हम कंटिन्यूसली एक काम करने के लिए देते हैं, कंटिन्यूसली अच्छे तरह से लीड करते हैं, गाइड करते हैं, तो क्या होता है, मतलब फ्यूचर में वो मिसगाइड नहीं होते हैं और उनका माइंड पूरा स्टेबल हो जाता है, जिससे कि उनके माइंड में नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं. उनका परफॉर्मेंस डे बाय डे अपग्रेड होता है. क्लियर? उससे क्या होता है कि इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड ए हेल्दी एनवायरमेंट, हेल्दी सिचुएशन टू द मैनेजमेंट. ओके. देन वी कैन फाइनली द फाइनल, क्लियर, द लास्ट वी कैन से फैसिलिटेट कंट्रोल. पूरा कंट्रोल में रहता है क्योंकि डायरेक्शन से एक लीडर होता है, एक बॉस होता है. अगर बॉस है तो पूरा टीम कंट्रोल में है, क्योंकि बॉस लीडर ही बोलता है कि ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करो, हो गया, अभी रेस्ट करो, अभी देना फिर से देगा, करो फिर रेस्ट करो. मतलब द लीडर that with the help of direction, with the help of proper guidance, motivation, order, you can control your team, you can control the efforts of your teammates, the efforts of your group. Clear? So that their efforts are not haphazard, clear, aimless. Clear? They are not supposed to waste their energy, clear, their effort with waste activities, because they are controlled. Clear? Who control them? The leader control them. The leader has with his own clarification, point of view, with his own objectional clarity, can control the full team. कि आप लोग रुको, अपने हिसाब से काम मत करो, जब तक आपके लीडर आपको ऑर्डर ना दे आप काम मत करो. ताकि क्या होगा, जब तक आपको कोई ऑर्डर ना मिला हो, आपका जो प्रिजर्व होके रह गया, क्या, आपका जो एनर्जी, एफर्ट, क्लियर, जिससे कि जब मिलेगा तब वो आप वो जो चीजों को अच्छे एक प्रोडक्टिव वे में यूज कर सको. ठीक है? सो विद दिस वी कैन से इट फैसिलिटेट ऑल ओवर कंट्रोल टू द इंडिविजुअल ग्रुप, एंड ग्रुप से पूरा, बूंद बूंद से सागर, ग्रुप से अपना पूरा मैनेजमेंट को वो कंट्रोल में रखता है. क्लियर? Okay, so these are the various importance or functions of the function directing. Directing ये सब काम करता है और ये सब काम के लिए ये important है. Okay, clear students? So with this we have completed our another important function, that is directing. I hope I must able to clear your conceptual doubts about directing. Clear? And I am sure that from this class further, clear,
in your future, from this point of view, from this point of time, you may be able to explain, to say what is directing, clear, and you can betterly understand, clear, and describe your ideas about directing, clear, okay. So all the best, and see you in the next class with a new function, that is, we have already completed planning, organizing, staffing, directing. Then what is next? The next is coordinating, controlling, clear, and reporting, budgeting, clear. So in the subsequent classes we'll definitely discuss those things. You please share your comment regarding the class, clear, and if you have any doubt, then please definitely comment me on the descriptions, clear, on the comment section. Then I will definitely will help you to clarify your doubts, okay. So that's it for today. All the best. Thank you.